اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج ریاست گجرات کے گودرا شہر میں مدرسہ فیض رحمانی کا سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ مسجد ہارون کی سامنے والی گلی میں شاندار پروگرام فیض رحمانی کا ہونے جا رہا ہے گودرا شہر میں، جہاں پر مقرر خصوصی کے طور پر مجھے ہی بلایا گیا ہے، اس لیے میں گجرات میں ہوں اور آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ گودرا اور گودرا کے آس پاس کے لوگ اس جلسے میں بڑی تعداد میں شریک رہیں اور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند، آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی ہے، دینی تعلیمی ادارہ ہے اور ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے والا یہ انسٹیٹیوٹ ہے دارالعلوم دیوبند۔ خبریں آ رہی ہے کہ ایک پرانے فتوے کی وجہ سے اب وہ سرخیوں میں آ گیا، ہیڈ لائنز میں آ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ ہند سے متعلق فتویٰ دینے پر دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کی گئی ہے، اور خبریں ہیں کہ ایف آئی آر کی تیاری بھی ہو گئی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند پر باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جبکہ محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ چائلڈ کمیشن کے اقدام پر انتظامیہ کی انہوں نے مذمت کی اور یہ کہا کہ فتویٰ دینے کا ہمیں دستوری سنویدھانک حق حاصل ہے، جواز حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے غزوہ ہند کو تسلیم کرنے کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں مرنے والے عظیم قربانیاں دینے والے ہوں گے۔ غزوہ ہند کو جواز فراہم کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے صحاح ستہ کی کتاب سنن النسائی کا حوالہ دیا۔ اس بات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، انہوں نے غزوہ ہند پر کہا کہ میں اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کروں گا، میں سب سے پہلے عظیم قربانی دوں گا۔ کتاب شائع کرنے والے ادارے کا نام بھی دیا گیا ہے، جس کو لے کر اب نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے غزوہ ہند کے فتوے کو سنجیدگی سے لیا۔ ضلع مجسٹریٹ کو لکھے خط میں کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ این سی پی
NCPCR का कहना है कि दारुल देवबंद मदरसे में बच्चों को मुल्क मुखालिफ तालीमात दे रहा है, लेकिन शायद ये बेवकूफ नहीं जानते हैं कि यही वो इदारा है जिसने आजादी हिंद में बड़ा रोल, बड़ा किरदार अदा किया और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने में यहीं के बच्चे जो है पहली लाइन में खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत के मंजूर होने की खबरें आ रही है, जल्द रिहाई का इम्कान नजर आ रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यानी ट्विटर पर कई वेरीफाइड जर्नलिस्ट, सहाफी, पत्रकार और समाजी कारकुनों ने मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत मंजूर होने की खबर नशर की है। सहाफी अशरफ ने जी सलाम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत मंजूर हो गई है। सलाम टीवी, हालांकि मुफ्ती साहब के अहल खाना की तरफ से कोई इत्तलात अभी नशर नहीं की गई है। समाजी कारकुन विनय दुबे ने भी लिखा कि मौलाना सलमान अजहरी को मोड़ासा कोर्ट से मशरूत जमानत दे दी गई है। अदालत के हुक्म की कॉपी जेल पहुंचने के बाद किसी भी वक्त जेल से रिहा किए जाएंगे। जी इस्लाम पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ सभी मामलों में जमानत दे दी है। जूनागढ़ केस में मौलाना को अदालत से बेल मिलने के फौरन बाद गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उनके खिलाफ गुजरात के कच्छ जिले में एक और मामला दर्ज था। खैर, मौलाना मौसूफ के जमानत की खबरें, खुशखबरियां अभी फिलहाल कुछ नजर आ रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के हजरत मौलाना महमूद मदनी को लेकर खबर आ रही है कि STF ने मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटे पूछगछ की। हलाल सर्टिफिकेट मामले में इंक्वायरी की गई, तहकीकात की गई। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन और दफातर से मुताल्लिक सवाल और जवाब भी किए गए हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना महमूद मदनी से STF ने पूछगछ की है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के हेडक्वार्टर में STF ने मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटे पूछगछ की है। यह पूछगछ हलाल सर्टिफिकेट मामले में की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक STF ने मौलाना मदनी से पूछा कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कहां से कराया गया, ट्रस्ट के दफ्तर कहां कहां किन किन रियासतों में हैं और हलाल सर्टिफिकेशन से मुताल्लिक जवाबित आपके क्या हैं और किन किन प्रोडक्ट्स पर और किन किन कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट दिया गया है। इससे मुताल्लिक STF मजीद पूछगछ कर रही है। STF ने मौलाना महमूद मदनी से बैंक अकाउंट्स की तफसील भी मांगी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त किसानों के आंदोलन को लेकर आ रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आज से किसानों का मुल्क की पैमाने पर किसानों ने ब्लैक डे, यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। घरों पर और गाड़ियों पर ब्लैक फ्लैग, काले झंडे लगाने का उन्होंने मुतालबा किया है और दिल्ली मार्च को मुलतवी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले महीने 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में एहतजाज होगा। पंजाब के किसानों ने दिल्ली मार्च का मंसूबा 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। 23 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। दर हकीकत हरियाणा के खन्नौरी सरहद पर पुलिस और किसानों के दरमियान तसादुम में एक किसान की मौत हो गई। किसानों की तंजीम AIKS का इल्जाम है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान किसान की जान गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इसकी तरदीद की है। पंजाब के किसान 2 दिन तक दिल्ली मार्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। खन्नौरी और शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च का मंसूबा एक किसान की मौत के बाद मुलतवी कर दिया गया है। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी का विरोध महंगा पड़ गया, मोदी की मुखालिफत महंगी पड़ गई। आप जानते हैं कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक जो लगातार मोदी, बीजेपी और RSS की पॉलिसियों की पोल खोलते थे और RSS और मोदी
मोदी की पोल खोलते थे। बताया जा रहा है कि अब इनको ये चीज महंगी पड़ गई है और इन्हें मुबैना करप्शन के उन्वान पर 30 ठिकानों पर इनके रेड डाली गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की एक टीम ने जुमेरात को यूपी के जिला बागपत के गांव में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के आबाई घर की तलाशी ली। जराये ने बताया कि सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे मलिक के आबाई घर पहुंची और लोगों की नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी। गांव वालों ने बताया कि गांव में सत्यपाल मलिक की सिर्फ एक पुरानी हवेली है जो खस्ताहाल है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम ने सत्यपाल मलिक के खानदान के रुकन सतबीर मलिक उर्फ हिटलर से भी पूछगछ की और साबिक गवर्नर के असासों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई टीम को मकामी पुलिस के जरिए मुआविनत मदद फराहम की जा रही है। काबिल जिक्र बात है कि जम्मू कश्मीर के केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में रिश्वत सतानी के मामले में सीबीआई की टीमें मुल्क भर में कई मकामात पर तलाशी ले रही है। सिविल वर्क्स के लिए 2200 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था, जिस पर रियासत के उस वक्त के गवर्नर मलिक ने एतराज किया था। मलिक ने 2 मंसूबों की मंजूरी के एवज 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश किए जाने की शिकायत की थी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर खुलकर तनकीद करते हैं। इसके अलावा मरकजी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 30 मकामात पर भी छापे मारे हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क का खबीस मलऊन मरदूद राजा जिसके मुंह से सिर्फ जहर ही उगलता है, और आप जानते हैं कि कोबरा सांप और किसी जहरीले खतरनाक नाग में भी इतना जहर नहीं होगा जितना इसकी जबान में है। यह हर वक्त हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम करता है, मगर अफसोस कि यह शख्स विधायक भी है और बीजेपी से है, इसलिए इसका कोई बिगाड़ भी नहीं पाता है। लेकिन खैर, अच्छी खबर आ रही है। मीरा रोड में ये आने वाला था। जाहिर बात है कि मीरा रोड में माहौल खराब हुआ था, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैली थी, दंगे और फसाद का माहौल बना था। तो ऐसी जगह पर तो ऐसे जहरीले सांप का आना अच्छी बात भी नहीं है कि वो जहर उगलेगा, माहौल को और खराब करेगा। तो पुलिस को मुबारकबाद हम देते हैं कि वहां की पुलिस इंतजामिया ने मीरा रोड में राजा के जलसे पर पाबंदी लगा दी है। 25 फरवरी को होने वाला उसका जलसा और उसकी रैली को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। वहीं पर खबरें आ रही है नागपुर से भी कि नागपुर से भी हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने कहा है कि वहां पर भी इस मरदूद का, खबीस का, मलऊन का प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन वहां पर भी शायद इसे इजाजत नहीं दी गई है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, खाने के पैकेट में अजीब खबर है कि खाने के पैकेट में 3500 करोड़ रुपए की मंशियात दिल्ली से लंदन ले जाई जा रही थी। जब पुलिस ने देखा तो पुलिस हैरान रह गई। पुणे पुलिस का चौंका देने वाला इंकशाफ आया है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक पुणे पुलिस ने मंशियात के हवाले से चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि दिल्ली से लंदन भेजे जाने वाले फूड पैकेट में मंशियात की स्मगलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुणे पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा मंशियात का जखीरा जब्त किया है। इस मामले की तहकीकात से पता चला है कि इस नशा आवर चीज को खाने के पैकेटों में छुपाकर दिल्ली की एक कोरियर फर्म के जरिए लंदन स्मगल किया जा रहा था। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक एमएलए जो अपने गले में शेर के दांत डालकर घूमता है, ये एमएलए
शेर के दांत डालकर घूमता है। बताया जा रहा है कि 1987 में ये कहता है कि मैंने शेर का शिकार किया था, 37 साल पहले एक शेर का शिकार किया था और उसका दांत अपने गले में डाला था। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के बुल्डाना हल्के की नुमाइंदगी करने वाले संजय गायकवाड़ का ये दावा है कि दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में ये गायकवाड़ गले में शेर के जिस्म के हिस्से के बारे में जब उससे पूछा गया तो गायकवाड़ ने कहा कि ये शेर का दांत है, 1987 में मैंने शेर का शिकार किया था। आपको बताते चले कि गायकवाड़ अपने बेबाक तफसीरों के लिए पहचाने जाने जाते हैं और ये भी आपको बता दूं कि 1987 से बहुत पहले मुल्क में शेरों का शिकार करना जुर्म करार दिया गया था, मगर ये उस जुर्म को खुलेआम बयान भी करते हैं। आइए महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है सियासी हलचल को लेकर कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, राष्ट्रवादी शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद जी पवार और ऐसे ही प्रकाश जी अंबेडकर, खबरें आ रही है कि अब इन तमाम में सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में है। महाविकास आघाड़ी में सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में है। उद्धव ठाकरे मुंबई लोकसभा की 4 सीटों के लिए बजीद है, 2 जगह कांग्रेस और एनसीपी को मिलने का इम्कान है। महाविकास आघाड़ी लोकसभा इलेक्शन के लिए सीटों की तकसीम के आखिरी मरहले में पहुंच गई है। नशिस्तों की तकसीम पर इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, जैसा कि कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूत है और हम मिलकर इलेक्शन लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के बिरादर निस्बती निहाल खान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शादी के एक प्रोग्राम में निहाल खान को कमाल खान ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुंबई में इसकी तदफीन होगी। निहाल खान साउथ मुंबई के मदनपुरा में रहता था और निहाल बॉस के नाम से मशहूर था। गोली मारने वाला शख्स भी रिश्तेदार ही है। खबर लिखे जाने तक निहाल का जसद खाकी अगरीपाड़ा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह देर रात गए लाए जाने का इम्कान था, क्योंकि वहां से फ्लाइट के जरिए मुंबई लाने की तैयारी की जा रही थी। लाश यहां लाने के बाद नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आएगी। तफसीली इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में बुध की शब 10 बजे शादी की एक तकरीब में बलदिया चेयरमैन के भाई ने अपने भाभी के भाई निहाल खान को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि शाहजहांपुर के जलालाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन शकील खान के बिरादर निस्बती निहाल खान 35 को कमाल खान ने गोली मार दी और वो जगह ही पर उसकी मौत हो गई।